Under the Azadi Ka Amrit Mahotsav series, we are discussing chronic kidney disease. We have with us Professor Sanjay Agarwal, who is Head of Department Nephrology, AIIMS Delhi. Welcome, sir, to the studio. So we have discussed till now that what are the causes, how does the kidney function, what are the causes, and what is the presentation in a chronic kidney disease. Now we will be discussing about its treatment and prevention. So I'll request you, sir, you can discuss the treatment of a chronic kidney disease before we go on to how we can prevent getting this condition. So अभी जैसे chronic kidney disease हमने बात करी कि if the diagnosis is correctly made, then it cannot be cured. So once we talk of a management, then what is the aim of management? So there are two basic management aim. Number one, as we understood that there are different stages, and with time any patient will go from stage 1 to stage 5 definitely. So our first aim is that we should start progression of patient going from a earlier stage, which is stage 1 to the later stage when patient need dialysis or kidney transplant. So our first aim in management of chronic kidney disease is to retard the progression from a milder stage to late stage. Second aim is that till we are doing this management, because we know we cannot revert, person cannot be brought back from stage 5 to stage 2. So as we know that it cannot be brought earlier stage, during this management patient should be as less symptomatic and should be able to lead his normal life. So these are the two main aim of management of CKD. Again emphasizing that if the diagnosis is correct, we cannot cure, but we can do lot many things for obtaining these two aims for the management of CKD. तो ये बहुत ज़रूरी, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और इसके लिए कि क्या प्रिकॉशंस लेंगे जो आप बाद में बताएंगे वो बहुत ज़रूरी हैं, और सबको ये ध्यान से जानकारी सुननी चाहिए, क्योंकि सीकेडी एक बार आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई तो ट्रीटेबल नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्रेस करेगी. हाँ, आप उसमें ध्यान ये रख सकते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि बहुत जल्दी आपकी बिल्कुल एंड स्टेज नहीं हो जाए, किडनी बिल्कुल ही ख़राब नहीं हो जाए. तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. और एक और भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें सिम्टम्स नहीं हो, जैसे नौशिया आपने बताया पिछले बार में, वॉमिटिंग हो, आदमी की लाइफ ख़राब हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए. मतलब वो प्रोग्रेस नहीं हो, और ड्यूरिंग दैट ही शुड बी एबल टू लीड हिज लाइफ एंड शुड बी यूजफुल टू सोसाइटी एंड हिज फैमिली. इसमें दो ब्रॉड ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट हैं. एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो कि ये प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ रोकते हैं. अगर इसमें हम देखें तो आजकल कुछ ऐसी दवा अवेलेबल होने लगी हैं पिछले 3-4 साल से कि कारण सीकेडी का कुछ भी हो, अगर हम डिक्रीज़ इन जीएफआर को स्लो डाउन कर सकें और डिग्री ऑफ प्रोटीनूरिया को कम कर सकें, क्योंकि हमने जब स्टेजेस की बात करी थी तो जीएफआर की बेसिस पे स्टेज 1 to 5 थी और प्रोटीनूरिया की बेसिस पे स्टेज 1 to 3 थे. तो हमारे नाउ देर आर ड्रग्स अवेलेबल विच डिक्रीजेज द डिग्री ऑफ प्रोटीनूरिया and the drug available which decreases the progression of glomerular filtration rate. So these two are drugs which are directly affecting the chronic kidney disease. Other than these, there are indirect effect of various other factors, like we should control the blood glucose, because that is one of the commonest cause of chronic kidney disease. We should control the blood pressure, because that is also one of the important factor for progression of chronic kidney disease. We should control fat in the body, lipid, and we should also restrict the diet so that there is no extra fluid accumulated in the body. तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि क्योंकि किडनी डिजीज़ बहुत सारे कारणों से होती है, तो वो सारी जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, जैसे एक्स्ट्रा या आपका अगर फैट कंटेंट ज़्यादा है फूड का, या आपको आपके टेस्ट में फ़ैट ज़्यादा आ रहा है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो वो सब जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपकी किडनी की बीमारी प्रोग्रेस करती ही चली जाएगी. Now
we should detect and treat all acute factor, because जैसे हमने बात करी, one of the presentation of CKD may be acute kidney injury, while actually patient is CKD, but there is some acute factor, say for example infection. Now if patient is stable on CKD, he has no symptom, he developed infection and then present as a acute kidney injury, and during investigation then we find that actually patient is chronic kidney disease, but he presented acutely because of the acute factor. We should prevent and treat acute factor which causes kidney damage. Second important principle है that we should avoid nephrotoxic drug, because as we talk, drugs are important cause of damaging the kidney, and now we have got over the counter drugs available, and almost practically all drugs are excreted from the kidney, either change or unchanged. So we should not use injudiciously those drugs which are causing damage to the kidney, because that will be additional insult, and the stage of CKD may then worsen from the earlier stage to the later stage. Now third basic principle is that because the drugs are excreted from the kidney, so depending upon the GFR, the doses of the drug needs to be modified. Almost a large number of the drugs actually need modification in the doses in presence of the chronic kidney disease, and also depending upon the stage of chronic kidney disease. Some drug may be modified to 75% in stage 2, but if the person goes to stage 4, then the same drug is modified by 25%. Almost all drugs are excreted from the kidney. We should not use nephrotoxic drug, and whatever drug we use, that also needs to be used in appropriate dosage depending upon the GFR. तो ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हमें पता है कि हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो ये हमें अपने हर एक डॉक्टर को बताने की पहली बात बहुत ज़रूरत है, ताकि जो डॉक्टर है उसको अगर पता हो कि हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो हमारी हर दवाई की डोज को शायद उसको कम करना पड़े, क्योंकि सारी दवाइयाँ जब हमारे बॉडी में जाती हैं असर करती हैं, और असर होने के बाद वो एक्सक्रीट होती हैं, वो भी किडनी के अंदर से जाती हैं। तो किडनी एक छलनी है, आप समझ सकते हैं, अगर छलनी ख़राब हो गई तो सब कुछ छनेगा नहीं, अगर नहीं छनेगा तो वो सारी दवाइयाँ आपकी बॉडी में ही रहेंगी, और अगर वो बॉडी में रहीं तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स के ऊपर असर करेंगी, इसलिए उसकी डोज को हमें शायद कम करना पड़े। और दूसरी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, जो स्पेशली हमारी कंट्री में क्या है कि आप केमिस्ट के पास जाके बहुत सारा टाइम आप केमिस्ट से ही पूछते हैं कौन डॉक्टर के पास जाएगा और कौन उसका लाइनों में लगेगा या कौन पैसा देगा फॉर कंसल्टेशन। इससे अच्छा है केमिस्ट से ही पूछ लीजिए। तो केमिस्ट से पूछने से क्या होता है, केमिस्ट को तो सारी चीज़ें नहीं पता हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देना है हो सकता है पता हो, लेकिन ये दवाई किडनी के ऊपर असर कर सकती है और किडनी ख़राब कर सकती है तो नहीं पता होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाइयाँ लीजिए, अपने आप दवाइयाँ नहीं लीजिए। कई बार हम ये सोचते हैं अच्छा मैंने पिछली बार मेरा पेट ख़राब था, डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी थी, अब फिर से पेट ख़राब हो गया, मैं इसको खा लूँ। ये नहीं करना चाहिए। इसकी और भी बहुत सारी, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए हमें सिर्फ अपने आप प्रिस्क्राइब्ड या नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिनको बोलते हैं, या ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं, कि आप गए आपने दुकान में मांगी और दवाई ली और खा ली, वो करना सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी है। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डायग्नोसिस समटाइम, जैसे हमने बात करी, इंश्योरेंस से होती है, या तो प्राइमरी केयर फिजिशियन भी क्रॉनिक किडनी की डायग्नोसिस करता है, बट एट सम स्टेज 3 और बियॉन्ड एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर रेफ़र करना चाहिए, ताकि वो उसका, बिकॉज दिस इज़ ए लाइफ लॉन्ग डिजीज़, सो ही कैन प्लान कि लाइफ लॉन्ग में उसको क्या ट्रीटमेंट, क्या अदर चीज़ें करनी हैं। उसके बाद एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट देख के पेशेंट कैन गो बैक टू द प्राइमरी केयर फिजिशियन, बिकॉज 10% एडल्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री हैज़ गॉट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ and nephrologists are only 1600. So nephrologists cannot manage chronic kidney disease, every patient of chronic kidney disease. But probably after stage 3, a guidance from a nephrologist, then continuing to treat the patient on basic principle of medicine is the best approach for handling all patient of chronic kidney disease. एक बार डायग्नोसिस होके प्लानिंग कर ली है नेफ्रोलॉजिस्ट ने, देन यू कंटिन्यू टू फॉलो पेशेंट ऑन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हमने वर्ड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसलिए यूज़ किया है कि
कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नहीं है। जैसे मलेरिया है, उसको आपने एंटी मलेरियल दिया, वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। बट इस टाइप से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कॉज का फिर भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ ट्रीट करेंगे, वो कॉज ट्रीट कर रहे हैं। अदरवाइज एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। दैट इज़ वाई वी से दैट वी आर कंजर्वेटिवली मैनेजिंग द पेशेंट एंड एम हमने बता दिया है टू रिटार्ड प्रोग्रेशन एंड टू कीप द पेशेंट एज फिट एज पॉसिबल। तो अगर हम कंपोनेंट ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का देखें तो एक तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन हम लगाते हैं पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल वन द डायग्नोसिस ऑफ सीकेडी इज मेड। इन पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है तो वी कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। बिकॉज विटामिन डी और भी कारणों से बोन डिजीज़ होती है तो हम बोन डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट नहीं होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में एसिड एक्यूमुलेट होता है बॉडी में तो एसिडोसिस हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। ये चीज़ हम फॉलो करते रहते हैं विद एम की प्रोग्रेशन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का कम हो। बट हम कितना भी कर लें, अगर आप ट्रीटमेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नहीं लेंगे तो एक पेशेंट हो सकता है 2 साल में एंड स्टेज में चला जाए। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपर लेगा तो वो 2 साल हो सकता है 10 साल लग जाए। बट अल्टीमेटली एट सम स्टेज पेशेंट यूजली स्टार्ट गोइंग टू स्टेज 3 and 4, जब हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि अब स्टेज 5 का ट्रीटमेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट कैसे होना है। उसके लिए फैमिली डिस्कशन होता है। पेशेंट को अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए प्लान करना पड़ता है कि कौन सा ट्रीटमेंट वो फैमिली कराना चाहती है, ताकि वो इमरजेंसी में लैंड नहीं करे कि सडनली उसको इमरजेंसी डायलिसिस करनी पड़ रही है। वो चीज़ें नहीं हो तो एक प्लान वे से ट्रीटमेंट रहेगा तो स्टेज 5 का ट्रीटमेंट बेटर ढंग से होगा और पेशेंट का आउटकम उन ट्रीटमेंट का बेटर होगा। अब हम डाइट की बात करें तो जो प्रोटीन हम लेते हैं वो एक्सक्रीट किडनी से होती है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट। तो हम सीकेडी के पेशेंट को प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर नॉर्मली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एडल्ट को प्रोटीन चाहिए होती है, इन पेशेंट को हम लोग 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से प्रोटीन करते हैं, ताकि जो प्रोटीन के वेस्ट प्रोडक्ट क्रेटिनिन और यूरिया हैं जो कि किडनी से फिल्टर होते हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी नहीं करें। फ्लूइड नहीं निकाल पाती किडनी ज़्यादा, तो इसलिए फ्लूइड की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं जिसको हमने पहले भी बताया कॉजेज़ में, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़। ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं करना पड़ता है क्योंकि ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ में यूरिन आउटपुट कम नहीं होता है। तो ये फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन हम कह सकते हैं ये इंडिविजुअलाइज्ड है। ये डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का कारण क्या है सीकेडी का, उसकी बेसिस पे फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना या नहीं करना है ये बेटर डॉक्टर आपका बताएगा। इसी तरह सॉल्ट की बात है, हर पेशेंट ऑफ सीकेडी में सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। कुछ पेशेंट हैं जिनमें हाइपरटेंशन होता है या फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, उसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना होता है। बट जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ होती हैं जिसमें सॉल्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें सॉल्ट नहीं रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम आती है बहुत सारे मरीज क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अपने आप सॉल्ट कम कर देते हैं। तो ये सॉल्ट और फ्लूइड किस वजह से किडनी डैमेज हुई है उस पर डिपेंड करता है और डॉक्टर की एडवाइस पर ही इसको मैनेज करें। बाकी जहाँ तक फैट की बात है वो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो डाइट में पोटेशियम ज़्यादा है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, बिकॉज पोटेशियम एक सीरियस चीज़ है। अगर पोटेशियम बॉडी में बढ़ जाएगा, ड्राई फ्रूट्स को हम मना करते हैं, बनाना को मना करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, संतरा है, मौसम्बी है, इसको मना करते हैं, नारियल पानी है उसको हम मना करते हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो उसको अगर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम कहते हैं आप ग्रीन वेजिटेबल को बॉयल करके जो उसका पानी निकलता है उसको फेंक के तब उसकी सब्जी आप बनाएं। तो ये जो मेजर कॉमन डे टू डे की डाइट्स हैं ये हमने 4-5 आपको बताई, ये हाई पोटेशियम डाइट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि अगर हम आज 100 मरीज लें सीकेडी की और उसको हम 5-10 साल में फॉलो करें
तो करीब 70 से 80% मरीज लोग एंड स्टेज में नहीं पहुंचते, उनको हार्ट के कॉम्प्लिकेशन होके उनकी हार्ट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से बीच में डेथ हो जाती है। तो 100 मरीज में से 20 या 30% ही एक्चुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जाते हैं, जबकि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि जो एक्यूट फैक्टर हैं उनको हमें प्रिवेंट करना चाहिए और उसको अर्लीस्ट ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेबल क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें एक्यूट फैक्टर होगा तो उसकी स्टेज 2 से 3 हो जाएगी, फिर कोई एक्यूट फैक्टर आएगा तो 3 से 4 आएगी। हर एक्यूट फैक्टर में डिग्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह से मल्टीपल एक्यूट फैक्टर होंगे तो जो हम प्रोग्रेशन को कम करना चाह रहे हैं वो प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा। तो हर एक्यूट फैक्टर को हमें प्रिवेंट करना चाहिए और अगर होता है तो अर्लीस्ट ट्रीट करना चाहिए। तो अब हमें देखना है कि आजकल करंट कंडीशन क्या है। करीब 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कि स्टेज 5 है, जिनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसमें करीब 12,000 से 13,000 लोगों का ट्रांसप्लांट पिछले साल हुआ है और करीब 2 लाख लोगों की पीएम डायलिसिस प्रोग्राम के बाद डायलिसिस हो रही है। बट उसके बाद भी करीब 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम देख रहे हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, इट मीन्स वी नीड टू प्रिवेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़। यहाँ पे एक हम बात जो अभी एक्यूट फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये एक्यूट फैक्टर हैं अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, कोई भी इन्फेक्शन है या उल्टी दस्त आ रहे हैं या डिहाइड्रेशन हो रहा है या हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हैं या हम पेशाब के पैसेज में रुकावट आ रही है, ये एक्यूट फैक्टर हैं जिनको हमें प्रिवेंट करना चाहिए और अगर होता है तो तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट करना चाहिए। रही प्रिवेंशन की बात, तो हम हर पेशेंट को तो प्रिवेंट स्क्रीन नहीं कर सकते कि इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या नहीं है। तो एक हाई रिस्क ग्रुप है जिसको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है, उसको हम स्क्रीन करना चाहिए। और वो हाई रिस्क ग्रुप क्या है? कोई भी मरीज़ जिसको डायबिटीज़ है, वो मरीज़ जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, वो मरीज़ जिसकी फैमिली में किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ऐसा पर्सन जो मोर देन 60 ईयर है, और या कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो दूसरी कंट्री में हैं जिनमें कि रिस्क ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ज़्यादा है। तो हम लोग कहते हैं कि जिन हाई रिस्क ग्रुप को साल में एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का टेस्ट होना चाहिए। और ये हम इसलिए करते हैं कि हम अर्लियर भी डायग्नोज क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से अगर हम 70 ml GFR पे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डायग्नोज कर लेंगे, उसका प्रोग्रेशन स्टेज 5 का 10 साल लेगा, जो कि हमने इसमें दिखाया है। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो जल्दी 7 साल में एंड स्टेज में चला जाएगा। अगर हम डिले ट्रीटमेंट करेंगे तो वो 9 साल में जाएगा, और अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करेंगे तो स्टेज 5 में जाने में उसको 10 साल लगेंगे। सो अर्लियर वी डायग्नोज CKD, वी कैन मच प्रोलॉन्ग द नीड ऑफ डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। करना क्या होता है हमें स्क्रीन करने के लिए? यूरिन में प्रोटीन, जो कि सिंपल डिपिस्टिक मार्केट में अवेलेबल होती है, पर्सन अपने घर में कर सकता है। यूरिन में प्रोटीन और एक ब्लड टेस्ट सीरम क्रिएटिनिन, ये 2 चीज़ हम करते हैं। साथ में ब्लड ग्लूकोज भी करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 40% पेशेंट ऑफ CKD इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। सो ब्लड ग्लूकोज, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन, ये 3 टेस्ट सफिशेंट हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ ए क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जो भी हमने हाई रिस्क ग्रुप की बात करी उसमें तो स्क्रीन करना ही है। साथ में वो मरीज़ जिनको किडनी के सिम्टम हैं, जैसे कि पैर में स्वेलिंग आ रही है या हाई ब्लड प्रेशर है या उसको माइनर ट्रॉमा से बोन फ्रैक्चर हो रहा है या उसकी अनएक्सप्लेन्ड हीमोग्लोबिन कम है या उसको यूरिन की कोई कंप्लेंट है कि यूरिन करने में दिक्कत आ रही है या यूरिन में ब्लड आ रहा है या यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन हाई रिस्क ग्रुप के अलावा ये सिम्टम जिन पेशेंट को हो रहे हैं उनको भी हमें स्क्रीन करना की ज़रूरत है। और ये जो टेस्ट और हम स्क्रीनिंग करते हैं इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 100 से 200 रुपीज़ में ये टेस्ट हो जाते हैं। किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये टेस्ट अवेलेबल हैं। एक बार अगर हमने टेस्ट किए और डायग्नोसिस CKD की हो गई,
तो लोग कहते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं. डायग्नोसिस हो गई है, हमें स्क्रीनिंग में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और वेट कंट्रोल करना चाहिए, स्मोकिंग बंद करनी चाहिए. अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना है बेस्ट. हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है. डाइट में फ़ैट को कम करना है. कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग विदाउट सुपरविजन नहीं लेना है. और डाइट में प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना है. साथ में कुछ ड्रग ऐसी हैं जो कि यूरिन में प्रोटीन लॉस को रोकती हैं. तो अगर हमने CKD डायग्नोसिस अर्ली कर लिए, वी कैन यूज़ दोज ड्रग टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ प्रोटीनूरिया विच इज़ ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज. तो इन द एंड वी विल से दैट अगर डाउट है या स्क्रीनिंग में किडनी डिजीज़ है तो कंफर्म कीजिए किडनी डिजीज़. हॉस्पिटल सेटिंग में या अदरवाइज डिफ्रेंशिएट कि ये एक्यूट किडनी डिजीज़ है या क्रॉनिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. एक्यूट किडनी डिजीज़ टोटली रिवर्सिबल है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रिवर्सिबल नहीं है. समटाइम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ प्रेजेंट एज ए एक्यूट किडनी डिजीज़. तो टू डिफ्रेंशिएट दीज टू थिंग आर इम्पॉर्टेंट. Then find out what is primary cause of chronic kidney disease. Because as we discussed, chronic kidney disease का अपना कोई treatment नहीं है. So if we find out chronic kidney disease का cause, so we can manage chronic kidney disease as well as we can treat the primary cause of chronic kidney disease. अगर primary cause नहीं है तो symptomatically patient को जैसी हमने बात करी उसको manage करें conservative treatment so that progression delay हो सके और ड्यूरिंग दैट फॉलो पीरियड उसकी लाइफ नॉर्मल बनी रह सके ताकि वो सोसाइटी और फैमिली के लिए यूज़फुल रहे. और जब वो एंड स्टेज पे पहुँचे तो वेल प्लान ट्रीटमेंट हो कि एंड स्टेज में उसको डायलिसिस कराना है कि ट्रांसप्लांट कराना है, ताकि वो सिचुएशन इमरजेंसी में क्रिएट नहीं हो जिसमें कि आउटकम पुअर होता है. थैंक यू वेरी मच सर. आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए. सबसे पहले कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ नॉट कंट्रोलेबल, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योरेबल नहीं है. ये अल्टीमेटली एंड स्टेज तक जाएगी, लेकिन कितनी जल्दी एंड स्टेज तक जाएगी वो कुछ हद तक हमारे हाथ में है. वो बहुत कुछ हमारे हाथ में है कि हम डिले कर सकते हैं टू द एक्सटेंट कि किसी को हो सकता है उसकी लाइफ टाइम में उसको ज़रूरत ही नहीं पड़े. तो हमें जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर्स के पास इमीडिएटली जाना चाहिए जैसे ही कोई सिम्टम्स हों. हमें अराउंड दी ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेना चाहिए. हमें सबको बताना चाहिए कि अगर हमें किडनी डिजीज़ है, ताकि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो हमें दवाइयाँ उस हिसाब से मॉडरेट करें. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रखकर अपनी किडनी को बचा सकते हैं एंड स्टेज तक पहुंचने के लिए. तो मुझे सब मेरे ख्याल में अब बहुत जानकारी हमने दी और सब इसका आप ध्यान रखेंगे. तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.